नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। इस वक्त की बड़ी खबर जुड़ी है कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान और उस पर मचे सियासी घमासान से। केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचे राहुल गांधी ने एक रैली में एक ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी विवाद शुरू हो गया। केरल के लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने वहां के लोगों की राजनीतिक समझ की जमकर तारीफ की, लेकिन इसी दौरान उन्होंने उत्तर भारतीय लोगों की समझ पर सवाल उठा दिए। राहुल ने कहा कि देश के राजनीतिक मुद्दों पर उत्तर भारत के लोगों की समझ सतही होती है। राहुल ने कहा वो 15 साल तक उत्तर भारत से सांसद रहे, लेकिन जो ताजगी उन्हें केरल और खासतौर पर अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में मिलती है, वैसी पहले उत्तर भारत में नहीं मिली। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing, because suddenly I found that people are interested in issues, and not just superficially, but going into detail. And recently I was talking to some students in the United States, and I said, I really enjoy going to Kerala and I really love going to Wayanad. राहुल गांधी के इस बयान के बाद देश की सियासत गर्मा गई। हमलावर हुई बीजेपी ने इस बयान को उत्तर भारत के लोगों का अपमान बता दिया। पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी से हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें एहसान फरामोश तक करार दे दिया। साथ ही उन्होंने कह दिया कि अगर उत्तर भारत के लोगों से इतनी ही नाराजगी है तो कांग्रेस उत्तर भारत में वोट मांगने ना आए। Rahul Gandhi, which insults not only the people and the voters of Amethi, but which seeks to create a divide between North and South of India, is to be condemned by every Indian citizen. This is not the first time that he has tried to indulge in divisive politics. Before this, he made a statement from Assam with regards to the people in the state of Gujarat. And the result was such that the Congress was wiped out in the local body elections, as was visible in the election results from Gujarat yesterday. The question that begets the politics of Rahul Gandhi is, for how long will he continue to lie to the people of our country? For how long will he seek to divide the people of our country? For how long will he try to build hatred between communities? Ma'am, now again he talked about he also talking about the fact that Rahul Gandhi sustains a lie was evident when he again promised the people in Kerala a ministry for fisheries. The fact that he insults the people of Kerala by speaking a lie time and again is something that the citizens of Kerala need to take note of. He was made available data with regards to the Ministry of Fisheries. What is astounding is that this gentleman himself asked a question of the same ministry. So did he lie to Parliament that he was unaware? Was somebody posing a proxy question on behalf of Rahul Gandhi? Or Rahul Gandhi, irrespective of knowing the truth, will dissociate himself with the truth and propagate continuously a lie and insult the intelligence of citizens across the country? No, but we can say that as we know that there's in Kerala and he's talking about तो स्मृति ईरानी जो खुलकर अब देखिए मैदान पर उतरी हैं और उन्होंने ये भी यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्हें उत्तर भारत नहीं पसंद तो वहां पर वोट मांगने के लिए भी ना आए। दिल्ली से हमारे सहयोगी अरुण सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। और अरुण, अब बीजेपी तो देखिए निशाने पर ले लिए क्योंकि मौका ही राहुल गांधी ने दिया। अब कैसे डिफेंड करेगी राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के उस बयान को डिफेंड किया है ये कहते हुए कि राहुल गांधी सिर्फ ये बात कर रहे थे कि देश में मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, राजनीति धर्म की, नफरत की नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने ये बयान दिया कि यहाँ पर मुद्दों की राजनीति होती है। उनके कहने का मतलब ये नहीं था कि उत्तर भारत में इस तरह की राजनीति नहीं होती है, लेकिन वो ये ज़रूर कहना चाहते थे कि साउथ इंडिया में मुद्दों पर ज़्यादा राजनीति होती है, नॉर्थ इंडिया में उतनी राजनीति उस पर नहीं होती है। और ये रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अब से थोड़ी देर पहले ही कहा है। और जो राहुल गांधी फिशरीज मिनिस्ट्री को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं और सरकार कहती है कि मिनिस्ट्री है हमारे पास, गिरिराज सिंह उसके मंत्री हैं, उस पर भी सफाई दी कांग्रेस ने। और कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी के कहने का मतलब ये था कि करोड़ों मछुआरे हैं जो हर रोज़ रोजी रोटी की तलाश में समुद्र में जाते हैं, एक बड़ी संख्या है, तो उनके लिए एक अलग मंत्रालय होना चाहिए। यानी इन दोनों मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने सफाई दी है। लेकिन कांग्रेस की जो रणनीति ताज़ा है वो यही है कि चूंकि नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य ऐसे हैं जहां पर पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, पार्टी वहां पर बेहद कमज़ोर है, और इसीलिए 2024 के चुनाव के मद्देनज़र पार्टी साउथ पर फोकस कर रही है। राहुल गांधी के दौरे देखिए आप,
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और राहुल ने अपने दौरे की शुरुआत पोंगल से की और तमिलनाडु से की। वो अब तक पश्चिम बंगाल नहीं गए हैं, लेकिन तमिलनाडु, असम और केरल के दौरे पर लगातार जा रहे हैं। यानी मकसद साफ है, कांग्रेस पार्टी खासतौर से राहुल गांधी साउथ को बेस बनाना चाहते हैं और साउथ से ज़्यादा सीटें जीत करके लोकसभा में 2024 में वो लाना चाहते हैं और इसीलिए मुझे लगता है उनका फोकस साउथ है। और केरल में जो बयान दिया है वो एक रणनीति का हिस्सा मुझे लग रहा है। बिल्कुल, रहिए जरा साथ। वहीं देखिए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी को उनके उत्तर भारतीयों पर दिए गए बयान पर घेरा और नड्डा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट में थे तो भारत के पश्चिमी हिस्से के लिए जहर उगल रहे थे, आज दक्षिण में हैं तो उत्तर के लिए जहर उगल रहे हैं। फूट डालो और राजनीति से काम नहीं चलता राहुल गांधी जी, लोगों ने इस तरह की राजनीति को ठुकरा दिया है। देखिए गुजरात में आज क्या हुआ है। वही केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अपने ही अंदाज में राहुल गांधी पर निशाना साधा, उनके बयान को पॉलिटिकल पाखंड बता दिया। ये पप्पू जो है पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन गया है और जो पप्पू पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन जाए तो वो इसी तरह का कि साउथ में रिफ्रेशमेंट और नॉर्थ में एक्सपेरिमेंट। दरअसल जो एक परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी है, परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी और पप्पू के चोचलों में लिपटा हुआ पूरा नेतृत्व, तो यही कांग्रेस पार्टी के संकट का कंटक बना हुआ है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी के उत्तर भारतीयों की समझ पर दिए बयान पर पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ ने भी बाकायदा ट्वीट किया और लिखा कि श्रीमान राहुल जी, श्रद्धेय अटल जी ने कहा था भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कृपया आप इसे अपनी ओछी राजनीति की पूर्ति के लिए क्षेत्रवाद की तलवार से काटने की कुत्सित प्रयास न करें। भारत एक था, एक है और एक ही रहेगा। भारत माता की जय। वह यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी राहुल गांधी के बयान पर भड़क गए और उन्होंने देश को बांटने वाली राजनीति न करने की नसीहत दे डाली। 15 साल अमेठी उत्तर प्रदेश के वो सांसद रहे, यहीं से राजनीतिक सफर शुरू होता है और आज केरला में जाकर आप उत्तर भारत और अमेठी के लोगों की बुराई करते हैं और कहते हैं कि वो जो मुद्दे हैं मुद्दे नहीं उठाते, उनको किसी और चीज़ में लोभ रहता है और केरला के लोग खाली मुद्दे उठाते हैं, इश्यूज़ को पकड़ते हैं। तो ये जो आपने खेल करने की कोशिश कर रही है नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने की, ये अंग्रेज़ों की नीति रही है, एक ये भारतीय संस्कृति नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ, एक ही शब्द आता है कि आप अमेठी की जनता के साथ एहसान फरामोश बन रहे हैं। कांग्रेस के सोच की पार्टी है ये। राहुल गांधी के इस बयान से जो उन्होंने केरल में दिया है, इससे साफ हो गया है कि ये हमेशा से बांटो और राजनीति करने वाली पार्टी रही है। आज भी उनका वक्तव्य ऐसा ही था जिस तरह से वो हमेशा दिया करते हैं कि आज उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के लोग और दक्षिण भारत के लोगों का अंतर बताया कि यहाँ के नासमझ लोग हैं उत्तर भारत के और वहां पर समझदार हैं। तो देश में विभाजन जिन्होंने पहले किया था, आज भी कोई नई रणनीति कांग्रेस के नेता कर रहे हैं विभाजन के लिए, जैसा राहुल गांधी जी का आज का बयान है, बहुत ही निंदनीय बयान। अरुण, देखिए आप भी जिस तरीके का जिक्र कर रहे हो, बीजेपी भी साफ तौर पे कह रही है कि बांटने की राजनीति हो रही है, लेकिन अगर किसी रणनीति के तहत राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया तो वो क्षेत्रीय पार्टी देखिए कांग्रेस नहीं है, केवल उनको दक्षिण में ही अपना अस्तित्व नहीं बचाना है, कल को उत्तर भारत में भी आना होगा। अगर वो ऐसा बयान दे रहे हैं, दक्षिण की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत के खिलाफ बात क्यों करनी है? बात रणदीप सिंह सुरजेवाला से पूछी गई थी। उनका ये कहना था कि उन्होंने दक्षिण की तारीफ करने का मतलब ये नहीं कि उत्तर भारत की बुराई की है, उन्होंने सिर्फ अच्छी बातों को हाईलाइट किया और अच्छी बातों को हाईलाइट किया जाना चाहिए। उनका ये कहना था कि दक्षिण की जो राजनीति है, खासतौर से केरल की, वो इशू बेस्ड होती है, मुद्दों पर फोकस होती है और यही बात राहुल गांधी ने कहा। इसके अलावा जितने भी संदर्भ इसके निकाले जा रहे हैं, खासतौर से बीजेपी या फिर केंद्रीय मंत्री जो संदर्भ निकाल रहे हैं, वो एकदम गलत है। ये रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सफाई दी है। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बात तो सही है कि कांग्रेस पार्टी की जो नज़र है
और जो रणनीति है वो साउथ पर बेस होने वाली है। अब से कुछ देर बाद ओमान चांडी और रणदीप सिंह सुरजेवाला चेन्नई पहुंच रहे हैं, डीएमके के साथ सीट बंटवारे की बातचीत हो रही है। आप देखिए कि बंगाल को लेकर के पार्टी उतनी आक्रामक नहीं है, लेकिन केरल को लेकर के, तमिलनाडु को लेकर के, असम को लेकर पार्टी ज़्यादा आक्रामक है। वहाँ नेताओं के दौरे ज़्यादा हो रहे हैं, खासतौर से राहुल गांधी के। तो ये रणनीति का एक हिस्सा ज़रूर है, लेकिन इस विवाद पर कांग्रेस ये कह के पटाक्षेप करना चाहती है इसका कि राहुल गांधी ने नॉर्थ इंडिया की बुराई नहीं की है, साउथ इंडिया में जो अच्छी चीजें हैं उनको हाईलाइट जरूर किया है, क्योंकि वो केरल से सांसद है। रहिए जरा सा, देखिए विवाद बढ़ा तो विदेश मंत्री एस जयशंकर भी सामने आए और उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया और बाकायदा ट्वीट किया, लिखा कि मैं दक्षिण से आता हूं, मैं पश्चिम के राज्य से सांसद हूं, मैं उत्तर भारत में पैदा हुआ, शिक्षा ली और काम करता हूं, मैं विश्व में सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता हूं। भारत एक है, इसे रीजन कहकर नीचा मत करिए, इसे कभी मत बांटिए। उत्तर भारतीयों की राजनीतिक समझ पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी के बयान पर भला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी पलटवार किया और बाकायदा उन्होंने उत्तर भारत की तरह ही दक्षिण भारत की जल्द ही कांग्रेस मुक्त होगा ये बयान भी दे डाला। जहां जहां पांव पड़े राहुल के, तहां तहां बंटा ढार, कांग्रेस का बंटा ढार। पहले उत्तर कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब भैया दक्षिण की तरफ चले हैं। लेकिन राहुल जी हमारे लिए, देश की जनता के लिए, पूरा देश एक है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अरे हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। अरुण, यहाँ बीजेपी तो ये तक कह रही है कि जहां जहां राहुल गांधी के पैर पड़े हैं वहां से सत्ता खोती गई है कांग्रेस, और ऐसे में उत्तर भारत की तरह ही दक्षिण भारत में जल्दी कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। तो देखिए, ये तो कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना ही की थी बीजेपी ने, और तो बीजेपी को इस मुद्दे पर तो खुश होना चाहिए कि अगर राहुल गांधी जहां जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अगर वहां से खत्म हो रही है, तो ये तो बीजेपी के लिए अच्छी बात है। बीजेपी के लिए कुछ करने के लिए नहीं बचेगा, ये कांग्रेस के लिए खुद राहुल गांधी कर दे रहे हैं। लेकिन ये सब बयान पॉलिटिकल बयान है। राहुल गांधी जब कोई बयान देते हैं तो बीजेपी ये कहती है कि वो किसी महत्व के बयान नहीं है, लेकिन उन्हीं के बयान पर तकरीबन दर्जनों मंत्री या फिर पार्टी के नेता बयान भी देते हैं, रिएक्शन भी देते हैं। ये सब पॉलिटिकल बयानबाजी है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या राहुल गांधी लगातार जानबूझ करके फिशरीज मंत्रालय के बारे में, एक बार गलती हो सकती है लेकिन दोबारा कैसे हो सकती है, कल फिर उन्होंने कहा कि फिशरीज मंत्रालय होना चाहिए। अब कांग्रेस की तरफ से उस मुद्दे पर सफाई ये आई कि राहुल गांधी ये नहीं कह रहे हैं कि फिशरीज के लिए मंत्रालय नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि एक डेडिकेटेड मंत्रालय और एक मंत्री उसके लिए होना चाहिए। जैसा कि आज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, उनका ये कहना था कि करोड़ों ऐसे मछुआरे हैं, लोग हैं, कोस्टल लाइन इंडिया कितनी बड़ी है, वहां पर लोग जान जोखिम में डाल करके समुद्र में जाते हैं मछली पकड़ने, तो उनके लिए एक मंत्रालय होना चाहिए। यानी कांग्रेस ये कह रही है कि मंत्रालय जरूर है, गिरिराज सिंह के नेतृत्व में चल रहा है, लेकिन वो डेडिकेटेड मंत्रालय सिर्फ एक मंत्री के पास, बड़ा मंत्रालय नहीं है, उसको एक उपभाग में बांट दिया गया है। तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से सफाई है। जहां तक राहुल गांधी के बयानों की बात है तो मैं स्पष्ट करूं आपको, रणनीति है ये कांग्रेस पार्टी की कि साउथ में उनको पैर पसारना है, वहां से मजबूती लानी है, क्योंकि नॉर्थ में जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे, वहां पर बहुत ज्यादा पार्टी के लिए उम्मीद नहीं बची है। बिल्कुल, और देखिए शायद ये उम्मीद नहीं बची है, इसीलिए जहां उम्मीद दिख रही है कांग्रेस पार्टी को, वहां पर ही राहुल गांधी पहुंच भी रहे हैं और बाकायदा वहां पर रैलियां कर रहे हैं राहुल गांधी, और वहीं पर उन्होंने दरअसल ऐसा बयान दिया जिसको लेकर देखिए सियासत खड़ी हो गई। उन्होंने अपने बयान में कई बातों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर भारत में जो लोग हैं वो सतही बातें करते हैं, मुद्दों पर उनका फोकस नहीं होता है। इसी बात को लेकर देखिए विवाद होना शुरू होना लाजमी था, और इसी को लेकर बीजेपी जो है वो आगे रणनीति भी बना रही है। राहुल गांधी के बयान पर बवाल बढ़ा तो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला उनके बचाव में उतरे। बीजेपी पर बंटवारे की राजनीति का आरोप लगाते हुए सुरजेवाला ने कहा कि अब बीजेपी ने उत्तर और दक्षिण के बीच बंटवारे का टूलकिट ले आई है। श्री राहुल गांधी ने सबसे सार्थक आह्वान इस देश के लिए किया कि देश में मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, राजनीति का मुद्दा नहीं। जीडीपी जो है वो नोज डाइव यानी औंधे मुंह क्यों गिर रही है और देश की अर्थव्यवस्था क्यों पिट रही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी के बयान का बचाव करते हुए कहा कि बांटने की राजनीति करना बीजेपी का काम है।
ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अपने अलग अलग हर आदमी अपने इलाके के बारे में कहता है। और जहाँ तक विघटन की और बंटवारे की राजनीति, तो भारतीय जनता पार्टी किसी को इस बारे में लेसन न दे। पूरे देश को धर्म के नाम पर हर चीज़ के बारे में एक दूसरे से बांटा है इन्होंने, और अपनी समझ की चीज़ों को दुनिया पर थोपने पर आमादा किया है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है अनंतनाग से, जहां पर 4 आतंकी ढेर किए गए हैं। सुरक्षा बल को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें, जैसे ही जानकारी मिली कि कुछ आतंकी इलाके में हो सकते हैं, पूरे इलाके की घेराबंदी की गई और उसके बाद भारी संख्या में सुरक्षा बल वहां पर मौजूद थी। काफी देर ये मुठभेड़ चली। जैश के ये 4 आतंकी बताए जा रहे हैं जो ढेर किए गए हैं। अभी भी इलाके को घेरा गया है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुछ और आतंकी भी इलाके में हो सकते हैं, इसलिए अभी भी और जगहों पर ढूंढा जा रहा है कि क्या कोई और आतंकी इलाके में मौजूद है। फिलहाल बड़ी कामयाबी यहाँ सुरक्षा बल के हाथ लगी है। 4 आतंकी ढेर किए गए हैं, जैश से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बल को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें, जैसे ही ये जानकारी मिली कि इस इलाके में आतंकी हो सकते हैं, वहां पूरे इलाके को घेरा गया और मुठभेड़ शुरू की गई। रिफत हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट के साथ। रिफत, ये 4 आतंकी ढेर किए गए, कुछ और आतंकी भी हो सकते हैं क्या इलाके में? अर्पिता, आपको जिस तरीके से मालूम है कि वहाँ फॉरेस्ट एरिया में श्री गुफवारा का अनंतनाग का एरिया है और यहाँ पे ऑपरेशन लगातार चल रहा था और पहले जो है फायरिंग हुई थी इनिशियल और उसके बाद एनकाउंटर जारी था और ये ओपन एरिया था और 4 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है और सेना का कहना है कि 4 मिलिटेंट मारे गए हैं। ऑपरेशन अभी लगातार जारी है। हालांकि ये समझा जा रहा था कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पे हो सकते हैं, लेकिन 4 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर जो है आर्मी की तरफ से आ रही है। अभी ऑपरेशन जारी है। क्या अभी और कुछ मिलिटेंट वहां पे हैं, ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन 4 मिलिटेंट जो मारे गए हैं, अब उनकी शिनाख्त की जाएगी और पता चल पाएगा कि किस संगठन के साथ इनका ताल्लुक था। लेकिन ये फॉरेस्ट एरिया है, बस्ती से थोड़ा सा दूर है और यहाँ पे ही ये मुठभेड़ चल रही थी। रिफत, ये फॉरेस्ट एरिया आप बता रहे हैं, क्या यहाँ पर ही कहीं किस जगह पर ये आतंकी छिपे हुए थे? और संख्या तो 3 से 4 की ही बताई जा रही थी। अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा कि काफी जगहों पे ये देखा गया रिसेंट टाइम्स में कि फॉरेस्ट एरियाज में जो है हाइड आउट बनाए जाते हैं और वहां पे जो है रहते हैं मिलिटेंट्स। काफी जगहों पे खाने पीने का सामान भी बरामद किया गया, एम्यूनेशन बरामद किया गया। तो ऐसे में लगता है कि वहां पे शायद ये मिलिटेंट रह रहे थे काफी टाइम से और सुरक्षा बलों को पता चला होगा कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हैं। उसके बाद ही यहाँ पे कॉर्डन किया गया और सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी इस ऑपरेशन में लगी हुई है। फिलहाल 4 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही है और ऑपरेशन अभी जारी है। अर्पिता, तो अभी भी ऑपरेशन जो है वो वहां चल रहा है। आपको बता दें, बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल को जरूर हाथ लगी है। 4 आतंकी ढेर किए गए हैं, जैश से इनका ताल्लुक बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर ये जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकी के होने की खबर मिली, पूरे इलाके को घेरा गया और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 4 आतंकी ढेर किए गए हैं। कोई बड़ा नाम इसमें भी सामने आ रहा है क्या रिफत? ये 4 आतंकी जैश से ही जुड़े थे? देखिए, अभी ये कह पाना मुश्किल है। जैसा मैंने कहा कि 4 मिलिटेंट के मारे जाने की सेना पुष्टि कर रही है, लेकिन उसमें अभी देखना होगा कि किस संगठन से इनका ताल्लुक था और कितने टाइम से ये वहां पे थे। बाकी जो है मामला इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा बल अभी स्पॉट पे हैं, इर्द गिर्द कॉर्डन है काफी एरिया में, तो अभी बाकी डिटेल्स इमर्ज हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से ये कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बाद ही ऐसे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं। खासतौर से फॉरेस्ट एरिया में ऑपरेशन अंजाम देना आसान भी होता है, डिफिकल्टी भी होता है। आसान इसलिए होता है कि इर्द गिर्द कोई बस्ती नहीं होती है और कहीं से भागने का मौका जो है मिलिटेंट को नहीं मिलता है। लेकिन अगर कहीं वो डीप उन्होंने हाइड आउट बनाया होगा तो वहां पे फायरिंग के जरिए जो है जो लगातार एनकाउंटर करना काफी मुश्किल हो जाता है अगर काफी डीप अंदर कहीं पे हाइड आउट में होंगे। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे ये जो ऑपरेशन अंजाम दिया गया और बहुत कम टाइम में फायरिंग हुई और 4 मिलिटेंट मारे गए। बिल्कुल रिफत, आप नजर बनाए रखिए। और एक बार फिर से जरा राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। केरल दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक और बयान पर देखिए घमासान छिड़ गया। अपने दौरे में राहुल गांधी केरल के कोल्लम में मछुआरों से बातचीत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान जैसे जमीन पर खेती करते हैं, मछुआरे वही काम समुद्र में करते हैं। किसानों के लिए अलग मंत्रालय है, लेकिन मछुआरों के लिए अलग से कोई मंत्रालय नहीं है जो आपकी आवाज को उठा सके। उन्होंने मछुआरों को भरोसा दिया कि उनकी सरकार बनने पर मछुआरों के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाया जाएगा। Our farmers farm the land, you farm the sea. The farmers have their ministry in Delhi. You don't have a ministry in Delhi. No one speaks for you in Delhi.
So the first thing I would like to do is have a ministry dedicated to the fishermen of our country, so that your issues can be defended and protected. राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी को पलटवार करने का मौका मिल गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल के उस बयान पर हमला किया जिसमें उन्होंने मछुआरों के लिए अलग से मंत्रालय बनाने की बात कही थी। अब कौन सा सवाल वो कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि ये सोची समझी रणनीति है। देश में नफरत फैलाना, मछुआरों में भरम फैलाना। वो मैंने जो कहा है वो भरम का हफीम खाए हुए हैं और लोगों को उसी भरम की जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मत्स्य मंत्रालय पर दिए गए राहुल गांधी के बयान के समर्थन में कांग्रेस के दूसरे नेता भी सामने आए। उन्होंने भी मछुआरों के लिए अलग से मंत्रालय बनाने की मांग की। इस देश में करोड़ों मछुआरे हैं जो अपनी एक कश्ती लेकर हजारों किलोमीटर की इस देश में कोस्ट लाइन है। आप महाराष्ट्र से, गुजरात से शुरू करिए और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल तक चले जाइए। हजारों किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और इस देश के करोड़ों लोग मछली के और हमारे मछुआरे भाई हर रोज समुंदर में जान जोखम, जान हथेली पर लेकर जाते हैं और अपनी 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। क्या उनके लिए एक पृथक मंत्रालय नहीं होना चाहिए? उधर पामेला गोस्वामी ड्रग्स केस में गिरफ्तार बीजेपी नेता राकेश सिंह को आज मेडिकल जांच के बाद कोलकाता की एक कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक दिन पहले पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत उन्हें पूर्वी वर्धमान से गिरफ्तार किया था। ड्रग्स केस में पहले से ही गिरफ्तार पामेला गोस्वामी ने ही राकेश सिंह का नाम लिया था, जिसके बाद राकेश सिंह को पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस भी दिया गया था। राकेश सिंह ने इस नोटिस को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती भी दी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद देर रात पुलिस ने राकेश सिंह को पूर्वी वर्धमान से गिरफ्तार कर लिया। राकेश सिंह ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के इशारे पर गिरफ्तारी का आरोप लगाया। আজকে ছেলেকে আমাকে এটা বন্ধ করে এখানে টিএমসি আসবে না, তাই জন্য লজ্জা অভিষেক ব্যানার্জি, ববি হাকিম আর ওম প্রকাশ মিশ্রা এদেরকে নিয়ে এটা হবে, এটা চলবে না। तो आपको बता दें, दरअसल राकेश सिंह ने इस नोटिस को कलकत्ता हाईकोर्ट में पहले ही चुनौती दी, लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद देर रात पुलिस ने राकेश सिंह को पूर्वी वर्धमान से गिरफ्तार किया। राकेश सिंह ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के इशारे पर गिरफ्तारी का आरोप लगाया। तो ये कल रात गिरफ्तारी हुई, जहां आज कोलकाता में मेडिकल के बाद पेशी भी होनी है। हमारे साथ इस वक्त रवि, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और उनके साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव मौजूद है स्मृति ईरानी। सीधे रवि का रुख। रवि, मैम आ गए। हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी है। मैम, जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया है साउथ भारत और इसके अलावा नॉर्थ इंडिया के लेकर, उस पर क्या कहना चाहिए? मैं इतना ही कहूंगी कि फूट डालने की राहुल गांधी की जो राजनीति है उसको जनता कैसे परास्त करती है, उसका प्रमाण आपने कल गुजरात के स्थानीय निकाय के चुनाव में देख लिया है। राहुल गांधी ने पहली बार हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला, ऐसा नहीं है। कुछ हफ्ते पहले असम में जाकर गुजरात और गुजरातियों का अपमान किया। कल दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में भेद पैदा करने का उन्होंने निंदनीय काम किया। देश की राजधानी में भारत के टुकड़े होंगे, उस नारे का स्वयं समर्थन किया। देश की आर्मी से उन्होंने दुश्मन देश में जाकर आक्रमण करने का प्रमाण मांगा। देश से इतनी नफरत है तो देश की राजनीति क्यों करते हैं, ये मुझे नहीं समझ आता।
इसके पीछे क्या मंशा मानती है? क्या आपको लगता है कि स्लिप ऑफ टंग है, उनकी समझदारी की वजह से यह जानबूझकर दिया गया? राहुल गांधी कभी स्लिप ऑफ टंग के मोहताज नहीं रहे हैं। जो भी बोलते हैं अपनी समझ के हिसाब से बोलते हैं। 15 साल जिस क्षेत्र से वो सांसद रहे, उनकी समझ से वो लोग खोखले थे। लेकिन मैंने कल कहा कि एहसान फरामोश है राहुल गांधी कि वो संसदीय क्षेत्र जिसमें गरीब से गरीब जनता ने उनको प्रेम दिया, उनको आशीर्वाद दिया, ये जानते हुए कि राहुल गांधी ने विकास का एक काम वहाँ नहीं किया, ऐसी जनता का सरेआम अपमान करना, ऐसी जनता का तिरस्कार करना। हार को 1.5 साल हो चुका है भाई साहब। 1.5 साल से राहुल गांधी अपने दिल में अमेठी और उत्तर भारत के लिए इतनी नफरत पाल कर रख सकते हैं, ये कल जनता को पता चला है। क्योंकि अमेठी से वो सांसद रहे हैं, इसके अलावा आपने उनको चुनाव में हराया। आपको लगता है कि अमेठी में अब उनको उम्मीद नहीं है, इसलिए इसकी वजह से इस तरीके की वो बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, मैं भी चुनाव हारी थी अमेठी से साल 2014 में। मैंने तो कोई जहर नहीं उगला। जनता ने तब भी मुझे परखने का प्रयास किया था। जनता ने तब भी मुझे जितने भी वोट मिले हों, भाजपा को पहले 30,000 वोट मिले थे, 14 में मुझे 3 लाख तक वोट मिला। लेकिन हार जीत अपना हमारे राजनीतिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। हारने के बाद इंसान को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, कहीं ना कहीं स्वयं के साथ ये चर्चा करनी चाहिए कि मैं जनता की किस उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, और उस उम्मीद पर दोबारा खरा उतरने के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि जनता का इस प्रकार से अपमान करना चाहिए। ये स्वस्थ लोकतंत्र का कोई भी संकेत नहीं है। एक बार उनका फिर बयान आया है कि एक और मंत्रालय बनाना चाहिए केंद्र सरकार को जो मछुआरों के लिए काम करे। वो दोबारा बयान दे रहे हैं। देखिए, ऐसा तो संभव नहीं है कि उनको इस बात का इल्म ना हो या ज्ञान ना हो कि मछुआरा और मत्स्य पालन का विशेष एक मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। इस बारे में गिरिराज सिंह जी जो उसके हमारे मंत्री श्री हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी का ध्यान आकृष्ट किया। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि संसद में राहुल गांधी ने इसी मंत्रालय से प्रश्न स्वयं पूछा है। तो या तो राहुल गांधी ने प्रश्न किसी प्रॉक्सी से पूछवाया, जो अपने आप में कानूनी अपराध है, एक एथिक्स कमेटी का विषय है, या फिर राहुल गांधी जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, फिर भी केरल की जनता के मध्य में जाकर इस झूठ को बार बार दोहरा रहे हैं और केरल की जनता का अपमान कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति ना उत्तर भारत का हुआ ना दक्षिण भारत का हुआ, ये सिर्फ अपना और अपनी राजनीति का हुआ। राहुल गांधी उत्तर और दक्षिण भारत को लेकर इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनकी बहन प्रियंका गांधी वो लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, किसानों के महापंचायत। आप इस गलत फहमी में ना रहें कि बहन ने समर्थन नहीं किया। अगर बहन ने समर्थन नहीं किया होता तो सार्वजनिक इस वक्तव्य का बहिष्कार किया होता। अब तक कांग्रेस का आला कमान चुप्पी साध कर बैठा है, इसका मतलब राहुल गांधी के बयान में श्रीमती वाड्रा की भी उतनी ही सहमति है। सीधे तौर पर निशाना राहुल गांधी पर ही साधते हुए, क्योंकि बैठे बैठाए अगर किसी ने बीजेपी के हाथ में मौका थमाया तो खुद राहुल गांधी हैं, जिन्होंने उन तमाम मुद्दों पर बातचीत की। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मोटेरा स्टेडियम की, जहां पर रामनाथ कोविंद आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और यहाँ दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन उनके कर कमलों से होगा। अमित शाह भी उनके साथ तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। अहमदाबाद में साबरमती के निकट बने मोटेरा स्टेडियम के उद्घाटन के मौके पर अमित शाह भी है। आज से ही इस मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच भी खेला जाना है। और देखिए, उद्घाटन के लिए पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी थी, थोड़ा डिले जरूर हुआ है, लेकिन जरा तस्वीरें देखिए जो सीधी आ रही हैं। यहाँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त मौजूद हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्टेडियम का उद्घाटन करने के बाद दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं भारत और इंग्लैंड के, उनके साथ मुलाकात भी करेंगे। और ये देखिए, उनके कर कमलों से ये उद्घाटन हुआ है। और इसी के साथ साथ आज देश को दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मिल गया। मोटेरा पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनके साथ ही में अमित शाह भी इस वक्त मौजूद हैं। और एक तरीके से कहें तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जब पुराने मोटेरा स्टेडियम को तोड़कर नया स्टेडियम बनाने का फैसला लिया गया था, तब पीएम मोदी ही गुजरात क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे। और नया मोटेरा स्टेडियम कई मायनों में शानदार है, और कर कमलों से राष्ट्रपति के इसके उद्घाटन भी हुआ। देखिए, किरण रिजिजू भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। शानदार ये स्टेडियम कई खासियत के साथ। मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जो 67 एकड़ जमीन पर बना है। पुराने स्टेडियम को तोड़कर नया मोटेरा स्टेडियम बनाने में तकरीबन 800 करोड़ रुपए की लागत आई है। जानकारी ये भी कि ये स्टेडियम 32 फुटबॉल मैदान के बराबर है। तो इसका उद्घाटन यहाँ खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों से हुआ।
अब उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है उसको करते हुए अमित शाह भी यहाँ तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ किरण रिजिजू भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आज देखिए यहाँ पर मैच भी होने वाला है भारत और इंग्लैंड के बीच। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ खास तरीके से इस स्टेडियम को बनाया गया है। इसमें 10,000 दर्शक बैठकर मैच देख सकते हैं। लगातार खेलने से पिच ना खराब हो, इसलिए मैदान जो है उस पर 11 क्रिकेट पिच भी बनाई गई है। इसमें साथ ही आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम भी लगाया गया है, जो आधे घंटे में पूरे मैदान को सुखा सकता है और आधे घंटे के बाद मैच वापस से शुरू हो सकता है। मोटेरा में 76 कॉर्पोरेट बॉक्स भी बनाए गए हैं और हर बॉक्स में 25 लोगों के बैठकर मैच देखने की व्यवस्था की गई है। यहाँ क्रिकेट के अलावा स्विमिंग पूल, बैडमिंटन और टेनिस कोर्ट भी है। साथ ही मोटेरा में इंडोर क्रिकेट एकेडमी और 3 प्रैक्टिस ग्राउंड भी है। तो सीधी तस्वीरें ये मोटेरा स्टेडियम से पहुंच रही हैं, जहां तस्वीरों में आपको रामनाथ कोविंद और अमित शाह, किरण रिजिजू जैसे तमाम पूर्वक स्मरण करते हुए अंतःकरण से नमस्कार करते हैं। उसकी सतह पर पैर रखकर चलते हैं, बैठते हैं, कई गुना वजन लाते हैं और कभी कभी उसे गंदा भी कर देते हैं, उसका पानी दूषित करते हैं। इन सब के लिए क्षमा याचना करते हुए नए भवन निर्माण की अनुमति मांग रहे हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव का भूमि पूजन संपन्न हुआ। जनक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और जनक देखिए, वो ऐतिहासिक लम्हा इस वक्त आंखों के सामने जब दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है। बिल्कुल, देखिए अर्पिता, स्पोर्ट्स एन्क्लेव भी बिल्कुल पास में तैयार है। जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि केवल ये क्रिकेट मैदान ही बंद करना रहे। स्पोर्ट्स एन्क्लेव में उसके अलावा ओलंपिक गेम्स भी आपको अगर खिलानी है तभी ओलंपिक गेम हो सके, इस दिशा में इसके प्रयास किए गए। तो स्पोर्ट्स एन्क्लेव में भी वही सारी चीजें हैं। चाहे आप स्विमिंग पूल की बात कर लें, वहां पर जो तो ओलंपिक में जिस तरीके के स्विमिंग पूल होते हैं उस स्टैंडर्ड को लेकर बनाया गया है। तो न कि केवल क्रिकेट को लेकर ही सीमित रहे, बाकी स्पोर्ट्स को भी यहाँ तवज्जो दी जाए। उस विचार को, प्रधानमंत्री का जो विचार था, उस विचार को आगे रखते हुए इस पूरे स्पोर्ट्स एन्क्लेव और मोटेरा स्टेडियम को डिजाइन किया गया है और बनाया गया है। अर्पिता, बिल्कुल। और देखिए 1,10,000 दर्शक जो हैं वो बैठकर मैच देख सकते हैं, लेकिन कोरोना का टाइम है और ऐसे में यहाँ 50% लोगों को ही बुलाया गया है। राष्ट्रपति महोदय कुछ क्षणों के बाद पधारेंगे। जनक, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख रहे हैं और ये एक तरीके से कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो आज पूरी तरीके से पूरा हुआ है। बिल्कुल अर्पिता, इसके पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। कुछ दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब मोटेरा स्टेडियम को 2014-15 में जब इसको रिनोवेट करने की बात चल रही थी, उस समय 49,000 कैपेसिटी थी और काफी जर्जरित हो गया था। तो जब यहाँ के पदाधिकारी और खासतौर पर सांसद परिमल नथवानी जब इस प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री के पास पहुंचे तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम रिनोवेट क्यों कर रहे हैं, हम क्यों नहीं इसको पूरी तरह से ध्वस्त करके दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाए। जहां 49,000 कैपेसिटी थी उसके मुकाबले वो दुगना करना था। तो ये अपने आप में बड़ा टास्क था, प्रोजेक्ट था कि अगर मेलबोर्न में 90,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम है तो उससे भी बड़ा कैसे बनाए। और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहा है उसके और उससे अच्छा बेहतरीन किस तरीके से बनाए। तो उस विजन को न कि केवल प्रधानमंत्री जब कोई टास्क देते हैं तो उसका फॉलोअप भी लेते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि तो हम दोबारा मीटिंग करेंगे तब आपके पास पूरा खाका तैयार होना चाहिए कि स्टेडियम कैसा होगा। तो उसके बाद काफी मंथन हुआ, इंटरनेशनल एजेंसियों को संपर्क किया गया कि मेलबोर्न का स्टेडियम जिस तरीके से बनाया उससे भी बड़ा और बेहतरीन किस तरीके से बनाया जाए। तो ये प्रधानमंत्री का एक विजन था। और आप देखिए 2015 में जब पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया और 6-5 सालों में पिछली साल ही ये तो तैयार होकर बन गया था, लेकिन आज उसका उद्घाटन हुआ। तो 5 साल के भी कम समय में दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टेडियम बनाकर दिखा गया। आप केविन पीटरसन के ट्वीट देख लीजिए, रोहित शर्मा के ट्वीट देख लीजिए, आप
विराट कोहली का ट्वीट देख लीजिए, उन्होंने भी अपने जब ये स्टेडियम से जब वो खुद रूबरू हुए, जब इस मैच खेलने के लिए आए, तब कहा कि उन्होंने बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, इंटरनेशनल स्टेडियम्स देखे, तरह तरह के स्टेडियम्स देखे, पर शायद ही कोई ऐसा स्टेडियम है उसके जो फैसिलिटीज है वो जो अहमदाबाद के मोटेरा के जो मैच कर पाए। तो ये अपने आप में जब प्लेयर खुद इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स जब इस बात का स्वीकार करते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टेडियम है, तो इसके जो बनाने वाले हैं और खास तौर पर जिनका विजन था वो विजन कितना बड़ा था, इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए जनक।